दोस्तों, क्या आपको अकाउंटिंग एंट्री सीखना है? क्या आपको अकाउंटिंग एंट्री से डर लगता है? क्या आपको अकाउंटिंग एंट्री समझ में नहीं आता है? डोंट वरी, सी दिस वीडियो फॉर नेक्स्ट 10 minutes and I am 100% sure I will be able to clear all your doubts. What I am planning to do is, from this video onwards, I am planning to take one topic, explain the journal entries, roughly take 9 to 10 types of transactions, explain the entries, explain the logic behind the entries, and then also prepare the trial balance and prepare profit and loss and balance sheet. That means we are going to see a complete cycle right from passing the entries till trial balance and profit and loss. So in this video, first we will try and understand the logic behind accounting entries, how the accounting entries are passed, and then subsequent things. So on each topic there would be two videos. One would be for accounting entries and second would be for trial balance and profit and loss account. फ्रेंड्स, आपको मालूम है यूट्यूब पे बहुत से वीडियोस है अकाउंटिंग एंट्रीज के बारे में जो आपको अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे करने हैं वो बताएंगे. हाउ द अकाउंटिंग एंट्रीज आर पास दैट दे विल टीच यू. बट इन दिस वीडियो इफ यू सी completely, I am going to show you why accounting entries are passed like this, the logic behind the accounting entries. Once we know the logic, I am 100% sure, let it be any type of entry, you will not have any difficulty in passing the entry. The moment you hear or read the transaction, accounting entry, you will be able to make in your mind immediately. That is my guarantee. But for that, you would have to see complete video. Okay. So before we start, let us refresh our memory. There are three types of accounts, as we all know. One is personal, second is real, and third one is nominal. Rule of the personal account is debit the receiver, credit the giver. Real account, debit what comes in, credit what goes out. And nominal account, debit expenses and losses and credit all income and gains. If you want to see the basic video on understanding of accounts and how the general entries are passed, basic video, you can click on this I button where I have given the link of my earlier video. Please see that video so that then your basics are also clear. Okay. So let's now take one transaction and sequentially see almost close to 9 to 10 entries for the same transaction. Okay. Let's move ahead. So friends, the transaction that I have selected is a simple transaction. Initially, if anyone wants to start a business, then he has to bring in the capital. So naturally, the first entry is how the capital is brought in the business and how it is recorded. And then subsequently, to start with, we would have a simple example of buying a two-wheeler for usage in business activities. These are two simple transactions. Now we will see the details. Okay. So this is the first transaction. Name of the proprietor is Mr. Apte, that is myself, and I am starting a business. So naturally I have to bring in the capital. Capital amount is 5 lakhs rupees. So what would be the entry? Entry would be bank account debit because I am bringing in the cash in my business, and credit would go to capital account. Capital account of whom? Capital account of Mr. Apte. As I had mentioned in my earlier video, where the link I have given above, you cannot debit your own account in your own books of accounts. Okay. So now I am starting a company, Apte Private Limited. So naturally, all the entries that I would be passing would be in the books of Apte Private Limited. So first entry, I am bringing in the capital of 5 lakhs rupees. So it would be bank account debit because I am putting the money in bank, and credit would be to my capital account of Mr. Apte credit. Okay. Now you will say anybody can tell this entry. Now comes the important topic, the logic behind this entry. Once we understand this logic, then let it be capital or let it be anything, we would be able to make accounting entry for everything. Now the logic behind this is what? See, there is one trick for passing the entries correctly. First, we need to decide in our mind as to which are the accounts involved in this particular transaction. Now we are seeing this particular transaction. Transaction number 1, 5 lakhs rupees brought in the company as capital.
What has come in is money. Money is a real account. What is the rule of the real account? Debit what comes in. Money has come in. Money has come in the bank. So bank account would get debited. Who is the giver? Mr. Apte is the giver. But as I said, you cannot book any accounting entry with your own account in your own books. So Apte has brought this money as capital. So credit would go to capital. Why capital? Capital is a personal account because there is a person behind that capital. Capital is a personal account. Rule of the personal account is what? Debit the receiver, credit the giver. That is why credit would go to capital account of Mr. Apte. Clear? मैंने जानबूझ के ये पहले एंट्री में ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, आगे के एंट्री में इतना टाइम नहीं स्पेंड करेंगे, सो दैट देन लॉजिक और आगे का एंट्रीज हम लोग कैसे अंडरस्टैंड करने वाले हैं, दैट वी वुड कम टू नो. दैट इज वाई आई एम स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन दिस. बोथ these items are balance sheet items, and the subsequent posting after making the trial balance would go to balance sheet. Okay, first transaction clear. Now we go to second transaction. कैपिटल तो आ गया, बिजनेस चालू करना है, बिजनेस चालू करने के लिए एसेट्स खरीदना है. सो second transaction that I have selected is Mr. Apte Private Limited. Now everything will be in Apte Private Limited books. Okay. Transaction 2 is Mr. Apte Private Limited bought a two-wheeler for business use. बिजनेस यूज़ है, बिजनेस यूज़ है, कैपिटलाइज करना पड़ेगा, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लेना पड़ेगा. व्हाट वुड बी द एंट्री? क्या अंदर आया है? व्हाट हैज़ कम इन? What has come in is vehicle. Okay, vehicle for business use. Vehicle is a real account. We can see that vehicle, we can touch, we can feel, we can sense. So vehicle is a real account. Debit would go to vehicle account. Credit would go where? Because since we have paid the money from the bank, credit would go to bank account. Both are real account. Debit what comes in, credit what goes out. Amount is 75,000 rupees. Narration would be being vehicle purchase for business use. Clear? Next entry. This entry we have prepared considering that all payments have been made by ourselves. Now assume a situation which is our transaction number 3. Apte Private Limited bought a two-wheeler for business use by taking a loan from XYZ Bank. अगर लोन लिया है तो क्या कैश की जगह पे खाली लोन है ना, तो डेबिट वुड गो अगेन टू व्हीकल बिकॉज व्हीकल हैज़ कम इन. ठीक है. क्रेडिट कहाँ पे जाएगा? पहले तो हमने बैंक को क्रेडिट दिया था बिकॉज वी हैड पेड एंटायर मनी. नाउ सिंस वी आर बाइंग इट ऑन लोन, वी वुड हैव टू रिकॉग्नाइज दैट लोन इन आवर बुक्स, दैट इज इन आवर बैलेंस शीट एज आवर liability because we have taken this loan from bank. We need to repay this loan. So whatever you need to repay is called as liability. So credit would go to loan account. Naturally बैंक पूरा का पूरा लोन नहीं देता है. समझो बैंक ने 60,000 दिया and 15,000 हमने कैश में पे किया. So entry would be vehicle account debit 75,000 rupees, loan account credit 60,000 rupees and bank account credit 15,000 rupees. Narration would be being vehicle purchase for business use on बैंक लोन. क्लियर? अभी लोन लिया है, लोन का हफ्ता भी देना पड़ेगा बैंक को एवरी मंथ. हफ्ता नहीं दिया तो कैसे चलेगा? बैंक आके व्हीकल लेके जाएगा. सो वेन एवर वी पे इंस्टॉलमेंट टू बैंक, नेचुरली कैश वुड गो आउट. Sorry, I am talking about the second leg first, but in order to simplify the entry, I am taking the credit leg first here. Money would go out, we would be paying to bank, so bank account would get credited. Debit would go where? बैंक को डेबिट नहीं कर सकते हैं, भले बैंक रिसीवर हो. डेबिट द रिसीवर यहाँ पे नहीं कर सकते हैं. यहाँ पे हमको क्या करना है? यहाँ पे हमको अपना लोन कम करना है. सो व्हाट वुड बी द एंट्री? XYZ लोन अकाउंट. XYZ इज अ बैंक नेम. सो XYZ लोन अकाउंट डेबिट 5,000 रुपीज़ टू कैश. ठीक है. XYZ को हमने पैसा दिया, अपना लोन कम हुआ. लायबिलिटी है, लायबिलिटी कम करना है तो लायबिलिटी को डेबिट देना है बिकॉज लायबिलिटी पर से ऑलवेज वुड हैव अ क्रेडिट बैलेंस. उसको कम करना है, उसको डेबिट देना है. लोन इज द रिसीवर, लोन को डेबिट देना है. क्रेडिट वुड गो टू बैंक अकाउंट बिकॉज आवर बैंक बैलेंस हैज़ गॉन डाउन टू दैट एक्सटेंट. ठीक है.
अभी आपके माइंड में आएगा खाली लोन ही पे करना है क्या, इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट कौन देगा? यस, इंटरेस्ट ऑल्सो वी हैव टू पे. सो सेकंड सिनेरियो दैट आई हैव कंसिडर्ड इज along with interest. Everything remains same, only thing interest component gets added in the accounting entry. 5000 was the installment, so debit 5000 rupees installment and debit also 500 rupees as interest. Why debit to interest? Because interest is a nominal account. Interest is a expense account. Interest is a nominal account. So rule of the nominal account is debit all expenses and losses. So debit would go to interest account and now credit would go to bank account again. In earlier entry we saw 5000 rupees. Now here 5000 plus this 500, 5500 rupees. Understood? So far so good. Now let's come to our sixth entry. Vehicle लिया है, asset है, तो asset को तो depreciation करना पड़ेगा. Depreciation नहीं करेगा तो कैसे चलेगा? Depreciation का भी मेरा एक वीडियो है जो मैं एंड में आपको उसका लिंक दूंगा. डिप्रिसिएशन मतलब क्या है तो वो भी आप डिप्रिसिएशन समझने के लिए देख लेना. तो व्हीकल को अभी डिप्रिशिएट करना है. डिप्रिसिएशन इज अ नॉमिनल अकाउंट. रूल ऑफ द नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. सो डेबिट वुड गो टू डिप्रिसिएशन. अभी क्रेडिट कहाँ पे जाएगा? वेयर द क्रेडिट वुड गो? इंटरेस्टिंग. वी कैन आइदर रिड्यूस द वैल्यू ऑफ द एसेट बाय डिप्रिसिएशन वैल्यू और we can also create a depreciation reserve. This is also a nominal account, but this forms part of balance sheet. So naturally depreciation reserve would have a credit effect. ठीक है? Depreciation account debit to depreciation reserve. Narration would be being depreciation charge at 25% rate. क्लियर? डिप्रिसिएशन कैसे चार्ज करना है और उसका इफेक्ट कहाँ जाता है? डिप्रिसिएशन जो एक्सपेंस पार्ट है दैट गोज एंड सिट्स इनटू P&L एंड डिप्रिसिएशन रिजर्व गोज एंड सिट्स इनटू बैलेंस शीट. आइदर रिड्यूस फ्रॉम द एसेट वैल्यू और शो इट ऑन द लायबिलिटी साइड. दिस इज एज फार एज डिप्रिसिएशन इज कंसर्न. सेवन सिनेरियो इज व्हीकल तो लिया है, उसको रन करने के लिए पेट्रोल डालना पड़ता है, उसको सर्विस करना पड़ता है. तो अभी हम लोग देखेंगे सर्विसिंग का एंट्री क्या होता है. सर्विसिंग मतलब क्या होता है? हम लोग पैसा खर्च करते हैं सर्विसिंग के लिए. तो जैसा डिप्रिसिएशन खर्चा है वैसा सर्विसिंग इज ऑल्सो एन एक्सपेंस. दैट एक्सपेंस फॉल्स अंडर कैटेगरी ऑफ रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस. ओके, सो डेबिट वुड गो टू रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस. अगेन वाई डेबिट वुड गो टू रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस? लॉजिक बिहाइंड इज रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस इज अ नॉमिनल अकाउंट. तो अभी आपको बात समझ में आई रहेगी कि whenever we see any transaction, the crux is we need to identify first accounts कि ये जो particular transaction है ये कौन से अकाउंट में जाने वाला है. Then once we identify the account, identify that account falls under personal, real और nominal account. Category of personal, real और nominal account. ये एक दफ़ा identify हो गया. Then simple है, रूल याद करो. रूल अपने को याद है. Then only implement that rule, apply that rule to that transaction. So going by the same logic, repairs and maintenance would get a debit and either cash or bank would get a credit because cash has gone out, or if we pay via GPay or if we pay via check then bank would get a credit क्योंकि बैंक बैलेंस कम हुआ. ट्रांजैक्शन नंबर 8, व्हीकल को यूज़ किया 2 साल. समझो व्हीकल को बेचना है अभी बिकॉज व्हीकल में मेंटेनेंस बढ़ रहा है. सो बिजनेस में हम लोग व्हीकल बेच भी सकते हैं. तो बेचना मतलब क्या है? सो दिस इज आवर ट्रांजैक्शन 8. अपटे प्राइवेट लिमिटेड सोल्ड द व्हीकल आफ्टर 2 years एट 50,000 रुपीज़. 50,000 में उसको बेच दिया 2 साल के बाद. ठीक है, और उसका जो कंसिडरेशन है वो 50,000 है. 50,000 में हमने बेचा. व्हाट वुड बी द एंट्री नाउ? अभी लेट्स अप्लाई द लॉजिक विच आई टोल्ड यू जस्ट हाफ अ मिनट बैक. ये ट्रांजैक्शन में कितने अकाउंट इन्वॉल्व है? एक तो व्हीकल है, व्हीकल हमने बेचा, व्हीकल है, और अपने पास कैश आया, कैश वी गॉट. सो प्राइमा फेसी वी कैन से व्हीकल है और कैश है. बट इन द बैकग्राउंड व्हीकल के ऊपर अपना डिप्रिसिएशन भी है. तो वो जो डिप्रिसिएशन का इफेक्ट है, व्हीकल बेचा, बैलेंस शीट में से एसेट निकल गया. एसेट निकल गया तो उसका डिप्रिसिएशन भी हम लोग नहीं रख सकते हैं.
डिप्रिसिएशन का जो हमने रिजर्व क्रिएट किया था वो भी हम लोग नहीं रख सकते हैं, उसको भी रिवर्स करना पड़ेगा। उसको कैसे रिवर्स करेंगे, चलो पहले स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 रुपीज़ कैश आ गया, बैंक को डेबिट गया 50,000 रुपीज़ का। 2 साल के बाद बेच रहे हैं तो 2 साल का एक्यूमुलेटेड जो उसका डिप्रिसिएशन है वो अपने अपने पास रहेगा बुक्स में। ठीक है, डिप्रिसिएशन पहले हमने कितना देखा, 18,750 एट 25% वैल्यू, एट 25% रेट। 2 साल का कितना होगा डिप्रिसिएशन, 2 साल का डिप्रिसिएशन होगा 37,500। जो डिप्रिसिएशन रिजर्व बैलेंस शीट में है उसको रिवर्स करेंगे। ठीक है, उसको रिवर्स किया। व्हीकल का ओरिजिनल एसेट वैल्यू कितना था, 75,000 रुपीज़, उसको भी रिवर्स करना पड़ेगा क्योंकि वो एसेट है, बैलेंस शीट में पड़ा था एसेट साइड पे, उसको निकालना है तो उसको क्रेडिट देना है। 75,000 नलीफाई हो जाएगा, एसेट अपने बुक्स में से निकल जाएगा। 37,500 उसके सामने हमको मिला कितना, 50,000 रुपीज़। बैलेंस कहाँ पे जाएगा, बैलेंस अपना फ़ायदा है क्योंकि कॉस्ट जो अपना है एसेट का इन आवर बुक्स is now only 37,500 रुपीज़ बिकॉज ऑफ दिस डिप्रिसिएशन। सो जो डिफरेंस है 12,500 रुपीज़ का वो हो जाएगा गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। गेन में क्यों जाएगा, ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो नेचुरली ये P&L में इनकम साइड पे जाएगा। ठीक है, ट्रांजैक्शन नंबर 8 समझ में आ गया। लेट्स सी ट्रांजैक्शन नंबर 9। इसी में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। 50,000 की जगह पे 35,000 अपने को मिला। वी गॉट ओनली 35,000 बिकॉज गाड़ी का कंडीशन थोड़ा ख़राब था समझ लो। 35,000 मिल गया तो क्या होगा, 35,000 के सामने हमने देखा गाड़ी का वैल्यू कितना है 37,500, उसके सामने मिला 35,000 ओनली। तो कैश कितना आया 35,000, डेबिट बैंक अकाउंट बिकॉज कैश अंदर आया, डेबिट व्हाट कम्स इन 35,000 रुपीज़। डिप्रिसिएशन और एसेट का लॉजिक सेम रहेगा। डिप्रिसिएशन का जो लॉजिक है जो पहले एंट्री में बोला वो सेम रहेगा। डिप्रिसिएशन जो एक्यूमुलेटेड है, डिप्रिसिएशन रिजर्व, उसको रिवर्स करना है, उसको डेबिट दो। एसेट निकल गया बैलेंस शीट में से, एसेट को बेच दिया, 75,000 को क्रेडिट चला गया, एसेट निकल गया, बैलेंस बचता है 2,500 रुपीज़। ये अपना लॉस है क्योंकि व्हीकल का रिटर्न ऑन वैल्यू जो है, डिप्रिसिएटेड वैल्यू जो है दैट वाज 37,500 रुपीज़, उसके सामने मिला कितना 35,000 रुपीज़। सो 2,500 रुपीज़ इज अवर लॉस। लॉस इज व्हाट, लॉस इज नॉमिनल अकाउंट। रूल ऑफ द नॉमिनल अकाउंट अगेन, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सो जैसे ही आप ट्रांजैक्शन सुनते हो, कोई भी ट्रांजैक्शन, उसको स्प्लिट करो 2 पार्ट में। एक तो पहले ट्राई एंड आइडेंटिफाई इसमें कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है। दूसरा चीज़, ये अकाउंट कौन से कैटेगरी में है, दिस अकाउंट बिलोंग्स टू विच कैटेगरी। ये एक दफ़ा आपके माइंड में आ गया तो देन व्हीकल रहने दो, फर्नीचर रहने दो, बेचा हुआ रहने दो, खरीदा हुआ रहने दो। आई एम 100% श्योर वंस यू मेमोराइज दिस, वंस यू मास्टर दिस, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा अकाउंटिंग एंट्री समझने में। तो अपना व्हीकल तो बिक गया, लेकिन सेकंड एंट्री में हमने देखा था कि व्हीकल हमने लोन पे लिया था, तो वो लोन भी तो बैंक को रिपे करना पड़ेगा। बुक्स में अगर एसेट नहीं रहेगा देन वी कैन नॉट कीप लोन ऑल्सो। सो आपटे प्राइवेट लिमिटेड ऑल्सो रीपेज द लोन फुल्ली टू बैंक। लोन कितना लिया था हमने 75,000 रुपीज़, ठीक है, लेकिन उसका कुछ हमने मंथली इंस्टॉलमेंट भी भरा है। तो एज्यूम करो 15,000 रुपया हमने उसका इंस्टॉलमेंट भरा है। तो 15,000 लोन इंस्टॉलमेंट भरने के बाद लोन बैलेंस इज हाउ मच, लोन बैलेंस इज ओनली 60,000 इन आवर बुक्स। सो बैंक को जितना लोन रिपे करेंगे उतना ही एंट्री अपने बुक्स में आएगा, मतलब जितना बैलेंस रहेगा उतना ही पे करना है। बैलेंस से ज़्यादा या बैलेंस से कम सेटलमेंट अगर करना है तो पे नहीं कर सकते हैं। सो 60,000 बैलेंस है, सो पेमेंट वुड बी 60,000 रुपीज़। जैसा रिपे हम लोग करते हैं, इंस्टॉलमेंट दिया था ऊपर के एंट्री में देखा तभी बैंक लोन को डेबिट किया था, सेम वे हियर ऑल्सो क्लोजर ऑल्सो वी नीड टू डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना बैलेंस है लोन का 60,000, वन टाइम क्लियरेंस कर रहा है, इंटरेस्ट भी जाएगा उसके ऊपर क्योंकि जितना टाइम पीरियड के लिए लोन यूज़ किया है उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा। समझो 4,000 रुपये इंटरेस्ट है। सो डेबिट बैंक लोन अकाउंट 60,000 रुपीज़, डेबिट इंटरेस्ट अकाउंट 4,000 रुपीज़, और बैंक में से जितना पैसा गया उसको क्रेडिट दे दो 64,000 से। नरेशन वुड बी बीइंग लोन रीपेड। क्लियर? So this is how accounting entries are prepared and
पास्ट। आई एम 100% श्योर अगर ये प्रोसेस कोई भी इस्तेमाल करेगा, भले उसको अकाउंटिंग का नॉलेज हो या ना हो, आप कंपनी में अकाउंट्स में काम कर रहे हो या और किधर काम कर रहे हो, वंस यू फॉलो दिस 2 बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ breaking the transaction into 2 parts, identifying the account and identifying the type of account, ये एक दफ़ा हो गया, absolutely no problem। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, ये जो मेरा सीरीज़ अभी मैंने चालू किया है अकाउंटिंग एंट्रीज़ का, इसमें हम लोग ऑलमोस्ट 10 वीडियोस बनाएंगे ये सीरीज़ में। तो आई एम 100% श्योर कि ये 10 वीडियो अगर आपने पूरे के पूरे देखे तो अकाउंटिंग का कोई भी कितना भी बड़ा आदमी आने दो कि जिसको अकाउंटिंग का बहुत नॉलेज है, यू वुड बी एबल टू पास द अकाउंटिंग एंट्रीज इन फ्रंट ऑफ एनीबडी। ये एक दफ़ा आपने नॉलेज एक्सपर्टीज़ कर ली है नॉलेज में दोस्तों, ये नॉलेज एक बार ही एक्सपर्टीज़ करनी है, उसके लिए मेहनत करनी है। मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, मेरे साथ आप भी मेहनत कीजिए और ये आपका नॉलेज एक दफ़ा पक्का हो गया, इट इज़ लाइफ लॉन्ग। इसमें कुछ बाद में चेंजेस आने वाले हैं नहीं, ये रूल्स ऐसे ही रहने वाले हैं। तो ये नॉलेज ले लो, तो ये कंसेप्ट समझो, मेरे आगे के पूरे 10 वीडियो जो आने वाले हैं वो देखो और अपना नॉलेज एनहांस करो। आगे क्या आने वाला है, इंटरेस्टिंग आने वाला है दोस्तों। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि ये अकाउंटिंग एंट्री इज़ पार्ट 1। पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो वुड बी हाउ वी प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस, हाउ अ ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड। This is only a glimpse of what I am going to show you in next video, that is part 2 of this video। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है एंड बेस्ड ऑन दिस ट्रायल बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट कैसे बनते हैं, ये हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे। बिफोर आई फॉरगेट, लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन, ऐसे जो सिनारियोज़ है, ये जो हमने एक सिनारियो लिया है, ऐसे हम लोग 10 डिफरेंट सिनारियोज़ लेके we would try and cover complete set of transactions in any business organization. So friends, this was it for today. If you have liked the video, please do not forget to subscribe and share. Thank you very much for your time. See you in next video.